guys, today we are going to start inside questions of class 9 chapter 1 science matter in our surrounding. So let us start with the first question. Which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, lemon water, smell of perfume. So what is matter? We know that matter is anything which have mass and volume. So chair has mass and volume. So do you think it is a matter? Yes, it is a matter. Air also has mass. Do you think that it is a matter? Yes, it is matter in the gaseous state. Love. Do you think love is a matter? It doesn't have any mass or nor did it have volume. So love is not a matter. Smell of any substances is matter. Not only smell is matter. So smell is not a matter. Hate is also a feeling, so hate is not a matter. Almonds, yes, almonds have mass, has also volume, so almonds is a matter. Thought is also a feeling, so it is not a matter. Cold is also a feeling, so it is not a matter. Lemon water, yes, lemon water is a matter. It has mass, it has also a volume, so it is a matter. Smell of perfume. Yes, we know that smell is not a matter. Does a smell of perfume matter, do you think? Are you curious to get the answer of this? Yes, smell of perfume is a matter. Do you know why? Perfume has mass and also has volume. You have seen perfumes, deo, scents and all. So these things have mass and volume, so it is a matter. If you don't understand still now, you can read the answer given here. You can also take screenshot of it. Now let us come to our next question. Give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. तो देखो, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो जल्दी से एयर में मिक्स हो जाते हैं, और एयर जो है वो तो मूव करती है, हमें पता है मैटर्स मूव करते हैं और इसीलिए उनकी स्मेल हमें दूर तक आ जाती है. लेकिन कोल्ड फूड में हाई काइनेटिक एनर्जी लो होती है, इसलिए नहीं आती है. तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप इसका आंसर देख सकते हैं. चलो एक बार आपको रीड करके ही बता दें इसको. पार्टिकल्स in the air, if fluided with higher temperature, acquire high kinetic energy, which aids them to move fast over a stretch. Hence, the smell of hot sizzling food reaches a person even at a distance of several meters. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? तो देखो, हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मैटर की. तो अब ये जो डाइवर है ये स्विमिंग पूल का वाटर कट कर रहा है, तो कट कैसे कर सकता है? जब उसमें स्पेस होगी तभी तो कट होगी. तो कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स. और दूसरी क्या दिखा रहा है? कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो देखो इसका आंसर, द डाइवर इज़ एबल टू ईजिली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज ऑफ द वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. It is the property of water that attributes to easy diving. So let us read our next question. What are the characteristics of particles of matter? तो हमें बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी चैप्टर में. हमें मेन 3 लिखनी, इसमें मेन 3 लिखी गई है. आपको 5 भी लिख सकते हो आप. तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी. मैटर जो है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब बहुत टाइनी होते हैं. उन सब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं ना. तो आप इसको आंसर देख सकते हो. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो. नहीं समझ आया तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे पर्सनल नंबर पर कॉल करके. The mass per unit volume of a substance is called density. Arrange the following in the order in increasing density. Air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. तो देखो, जो सबसे कम डेंसिटी होती है वो किसकी होती है? एयर की होती है, गैस की होती है. ठीक है. उसके बाद लिक्विड्स की होती है और उसके बाद सॉलिड्स की होती है. तो हम इसमें से देख के बता सकते हैं. तो सबसे पहले डेंसिटी किसकी कम होगी? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़ की सबसे कम होगी. यहाँ पे एयर लिखा गया लेकिन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़, उसमें तो पार्टिकल
रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो चुके हैं इसीलिए। उसके बाद एयर की, फिर आपका आएगा वाटर, फिर आपका आएगा हनी, फिर आपका आएगा कॉटन, फिर चॉक, फिर आयरन। ठीक है, आपको नहीं पता चलता तो आप इसका नीचे का देख सकते हो, बस फर्स्ट सेकंड गलत है, उसको सही कर लेना। ओके, अरे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अरेंज, you have to arrange this in a table so that it looks greater. So the first question is tabulate the differences in the characteristics of matter. तो ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिफरेंसेस बताएंगे मैटर के। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं शेप। सॉलिड की फिक्स शेप होती है क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। गैसेस की होती है क्या? नहीं होती है। वॉल्यूम, तो सॉलिड्स का फिक्स वॉल्यूम भी होता है, लिक्विड्स का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस का तो ये भी फिक्स नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो देखो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसमें मैक्सिमम लिखेंगे। लिक्विड में मॉडरेट है, लेस देन सॉलिड्स भी कह सकते हो। गैसेस में तो सबसे कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो जो सॉलिड्स में स्पेस बहुत कम होती है, इसीलिए उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, इसीलिए हम इस पर वेरी लेस लिखेंगे। लिक्विड्स की सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, रिजिड, तो सॉलिड्स तो बहुत रिजिड होते हैं, उनकी शेप बदल नहीं सकते हो आप, लेकिन वो तो फ्लो तो कर ही नहीं सकते हैं। और लिक्विड्स की कैन फ्लो, लेकिन वो रिजिड नहीं होते, उनकी शेप परमानेंट नहीं होती। आप किसी भी कंटेनर में डाल दो लिक्विड को, वो उस शेप का हो जाता है। और गैसेस तो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन वो भी रिजिड नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कैसे आप दबा के उसको क्या कर सकते हो, तो नेग्लिजिबल होती है। सॉलिड्स तो कंप्रेस ही नहीं हो सकते, लिक्विड्स थोड़े से कंप्रेस हो सकते हैं, और गैसेस एकदम पूरी तरीके से कंप्रेस हो सकते हैं, मतलब हाईली कंप्रेसिबल है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो रिजिडिटी क्या होती है? सब्सटेंस को अपनी शेप को करेक्ट रखने के लिए। तो एक बार इसको देखते हैं। इट इज़ द propensity of a substance to continue to remain in its shape when treated with an extreme external force। ठीक है, compressibility, हम उसको दबा सकते हैं। It is the attribute of particle to contract its intermolecular spaces when exposed to an external force, when thereby escalating its density। Fluidity क्या होती है? कि flow करती है कि नहीं। It is the availability of a substance to flow or move about freely। Availability, ठीक है, ability, तो क्या है इसमें कि एबिलिटी बताओ, इसमें देखनी होती है कि कोई सब्सटेंस फ्लो कर सकता है फ्रीली कि नहीं। फिलिंग द गैस कंटेनर, तो द पार्टिकल्स इन अ कंटेनर टेक इट्स शेप एज दे रैंडमली वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। शेप, डेफिनेट शेप होनी चाहिए, बाउंड्री एक्सटर्नल उनकी बढ़नी नहीं चाहिए। इट इज़ द डेफिनाइट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन एन एक्सटर्नल बाउंड्री। काइनेटिक एनर्जी, जो कि मूवमेंट से रिलेट करती है, तो हम इसको भी देख सकते हैं। मोशन अलाउज particles to possess energy which is referred to as kinetic energy. The increasing order of kinetic energy possessed by various states of matter are solids से कम लिक्विड, लिक्विड से कम गैसेस, गैसेस में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड्स में, फिर सॉलिड्स में। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज K.E equals to 1/2 mv², where m is the mass and volume is the velocity of the particle। तो डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी, इट इज़ द मास ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। It is expressed as density equal to mass by volume. We have read it earlier also, where d is density and m is the mass and v is the volume of the substance. So now let us give reasons for it. The next question: a gas fills completely the vessel in which it is kept। देखो, तो गैस में जो स्पेसेस सबसे ज़्यादा होती है, आप गैस को तो कभी बंद नहीं कर, जब बंद करते हो तो कम्प्लीटली भर लेते हैं, क्योंकि वो तो कैसे भी रैंडमली मूव करते रहते हैं। Kinetic energy proposed by gas particle is very high, which allows them to randomly move across all direction when contained, hence the particles fills the gas vessel entirely। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो हम जानते हैं कि गैस रैंडमली मूव करते हैं, उनके पार्टिकल्स में बहुत स्पेस होता है, उनकी शेप भी नहीं होती है। तो जब वो ऐसे रैंडमली मूव करते हैं तो वो साइड्स की जो वॉल होती है उसमें भी टकराते होंगे, इसीलिए प्रेशर लगता है उधर। गैस molecules possesses high kinetic energy due to which they are under constant motion inside the container in random direction, which causes them to hit the walls of container and hence create vibrations. These collisions with the walls of container generate pressure. A wooden table should be called solid. देखो सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और जो उनके अंदर स्पेसेस होती है वो बहुत कम होती है और पार्टिकल्स का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो टेबल की भी फिक्स शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, स्पेसेस कम है, और जो इनके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़्यादा है, तो ये सॉलिड हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, वैसे तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं होगी, बट आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अभी दिखा रही हूँ, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We can easily move our hands in the air, but to do the same thing through a solid block of wood, we need a karate expert. तो देखो एयर के पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारा गैप होता है, तो हम उसमें आराम से अपने हाथ को हिला सकते हैं, काट सकते हैं एयर को। लेकिन जब हम सॉलिड ब्लॉक के अंदर तो बिल्कुल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, स्पेसेस बिल्कुल कम होती है, इसलिए हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए होगा उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो इसका आंसर भी। Liquids generally have a lower density than solid, but you must have observed that ice floats on water. Find it out. Why? तो देखो जो आइस होती है उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है, ठीक है, वाटर से कम होती है। उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिसमें कि एयर भर जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर पे फ्लोट कर सकता है। तो आप इसको देख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। द लो डेंसिटी ऑफ आइस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल पोर्स इट हैज़ विच अलाउज इट टू ट्रैप एयर, हेंस आइस फ्लोस ऑन वाटर। So now read the next question. Convert the following temperature to Celsius scale. तो देखो ये केल्विन में लिखी गई है, हमें पता है कि केल्विन क्या होता है, कि केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो अब 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो 273 के बराबर होता है। तो अभी हमें 300 के को दिया गया है केल्विन को, हमें उसको सेल्सियस में बदलना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 300 माइनस 273 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 27 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट वाले में हम 573 माइनस 273 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 300। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग होगी, क्योंकि हमें पता है बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो गैसियस स्टेट पे हो जाएगी। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर बॉईल होना शुरू होता है, मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड से, तो वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैसियस स्टेट में भी होगा, तो दोनों पॉसिबल है। आप चाहे तो देख सकते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत होगी इसको और समझने की, बट आप देख सकते हैं। At 250 डिग्री सेल्सियस gaseous state, since it is beyond its boiling point. At 100 degree Celsius it is the transition state, as the water is at its boiling point, hence it would be present in both liquid and gaseous state. तो अब हम next question देखते हैं. For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? तो हमने latent heat of vaporization और latent heat of हमने पढ़ा था, latent heat एक पढ़ी थी, एक latent heat of vaporization पढ़ा था, latent heat of boiling और vaporization, ठीक है, हमने ये 2 latent heats पढ़ी थी। तो क्यों होता है ये? तो देखो जितनी भी हीट एनर्जी होती है ना, जो हमें एक चेंज को स्टेट करने में, एक स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो जाती है, इसलिए उनका टेम्परेचर सेम रहता है। इट इज़ ड्यू टू लैटेंट हीट, एज द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द सब्सटेंस, हैंस द टेम्परेचर स्टेज कॉन्स्टेंट। और मैं भी क्या बेकार की बातें करी थी, लैटेंट हीट के 2 टाइप बता रही थी, एक ही है, मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एक होता है, एक दूसरा भी होता है, मैं दोनों का मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ।
इसमें सिर्फ एक के लिखना है आपको, दोनों नहीं लिखना है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो हम CNG हम जानते हैं कि वो लिक्विफाई होके आता है, और LPG जो हमारे सिलेंडर्स में भरते हैं वो भी लिक्विफाई होके आते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं दोनों। तो हम कैसे कर सकते हैं इनको लिक्विफाई? हम इनको कंप्रेस करके कर सकते हैं, मतलब हाई प्रेशर दे के और टेम्परेचर बढ़ा के कर सकते हैं। तो ये मेथड है, ठीक है। इट कैन बी अचीव बाय आइदर इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विच अल्टीमेटली लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? तो देखो हॉट ड्राई डे पे क्या होता है, जो डेजर्ट कूलर होता है ना उसके अंदर हम देखते हैं कि पानी भरते हैं। जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है। तो जब कोई चीज़ इवेपोरेट होती है तो क्या बचता है? कूलिंग होती है वहाँ पे, इसीलिए ज़्यादा कूल करता है। इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई एंड इट इज़ लेस ह्यूमिड ऑन हॉट ड्राई डे which enables better evaporization. High levels of this evaporization provide better cooling effects. तो यही मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does the water kept in an earthen pot become cool during summer? तो देखो earthen pots में क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं जिसमें से जो पानी है वो सीप करता है, ठीक है। जो पानी सीप करता है वो इवेपोरेट होता है। जब इवेपोरेट होता है तो अपने सरफेस के सारी गर्माहट को अपने साथ लेके जाता है, इवेपोरेट होता है तो क्या बच जाता है? कूलिंग, इसीलिए पानी ठंडा हो जाता है। तो देखो एन अर्थन पॉट इज़ अ पोरस इन नेचर। दीज टाइनी पोर्स facilitate penetration of water and hence their evaporization from the pot surface. The process of evaporation requires high energy which is contributed by water in the pot, as a result of which water turns cooler. Why does our palm feel cold when we put on some acetylene or petrol or perfume on it? तो देखो इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आजकल कोविड-19 चल रहा है, आप लोग सब सैनिटाइज़र्स तो यूज़ करते ही होंगे। तो आप देखते हो कि जब सैनिटाइज़र्स को हम अपने हाथ पर डालते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें बहुत ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? तो इनकी जो इवेपोरेशन होती है ना बहुत जल्दी होती है, तुरंत इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है ना ये 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, तो ये तुरंत इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इवेपोरेट होता है तो क्या बचता है? कूलिंग। तो इसका भी यही आंसर है। एसिट्रेन, पेट्रोल और परफ्यूम आर volatile substances that get evaporated when they come in contact with air. Evaporation is facilitated as it uses energy from palm, hence leaving a cooling effect on our palms, ठीक है। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? तो जो evaporation होता है उसका जब surface area बढ़ता है तो ज़्यादा जल्दी होता है। तो सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है कप से, इसीलिए इवेपोरेशन जल्दी होता है। तो जो चीज़ें हैं वो ठंडी होने लगती हैं जल्दी, और इसीलिए हम जल्दी पी पाते हैं। तो अ सॉसर हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया देन अ कप विच प्रमोट्स क्विकर इवेपोरेशन, हेंस द टी और मिल्क इन अ सॉसर कूल्स डाउन फास्टर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कल एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। What types of clothes should we wear in summer? तो समर्स में हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। पूछो क्यों? देखो हमारी बॉडी का जो पसीना होता है ना वो इवेपोरेट होता है, और जो कॉटन क्लोथ्स है उसको ऑब्जर्व करता है। तो जब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी बॉडी का जितना भी हाई टेम्परेचर होता है ना वो सब वो वाटर ऑब्जर्व कर लेता है और इवेपोरेट होता है। तो क्या बचती है? कूलिंग। इसीलिए हमें कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए, ऐसा पॉलिस्टर या फिर जूट के क्लोथ्स में नहीं हो पाता है। In summer, it is preferred to wear light-colored cotton cloth because light colors reflect heat and cotton materials have pores that absorb heat, facilitating their evaporation, hence causes a cooling effect in the skin. तो अब थैंक्स फॉर टुडे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो। और आज के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए।